Good afternoon, student. Today we are going to take a lecture on laser beam machining. This laser beam machining comes under the non-conventional machining. There are mainly there are mainly different types of the non-conventional machining. First one is laser beam machining. Second one electron beam machining. Third one plasma arc machining, and fourth one you can say electrochemical machining. These are comes under the non-conventional machining. So now we start with the new topic. That one is a laser beam machining. First of all, understand what is the basic principle involved in the laser beam machining, as well as what are the different arrangement made in laser beam machining to produce the laser and perform the intended work. पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे क्या क्या इसमें बेसिक अरेंजमेंट है, एज वेल एज क्या आपका इसमें वर्किंग प्रिंसिपल है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज लेजर बीम मशीनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट आर द डिफरेंट अरेंजमेंट मेड इन लेजर बीम मशीनिंग. दिस वन इज ए फ्लैश लैम्प. ठीक, जस्ट लाइक फ्लैश ट्यूब you have seen in day-to-day life. This one is a flash lamp which produces a high amplitude and high wavelength light, and this one is a ruby. The main function of this one is a ruby or laser discharge tube, where light is amplified and stimulated emission was stimulated. First of all, what is the full form of the laser? लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. ये आपको ध्यान रखना है कि लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? फर्स्ट वन इज फ्लैश लैम्प. This one is a laser tube where amplified light is produced, and this one is this part is the reflector, partial reflector. It means it will allow some part of the light to pass on and restrict the light to pass on. And this one on the back there is a total reflector which does not allow any the passes of the light. Clear? After after this arrangement, we are placing an optical lens at somewhat distance. This optical lens distance is arranged by automatically depending upon the thickness of the workpiece material. We can use up and down with the help of the automatic arrangement. ये आपका क्या होता है कि ये ऑप्टिकल लेंसेज की हम डिस्टेंस को मैनेज कर सकते हैं अप एंड डाउन डिपेंडिंग अपॉन दी कितनी आपकी इंटेंसिटी चाहिए लाइट की प्रोड्यूस करने के लिए. अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल में. वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि फ्लैश लैम्प में हम क्या करते हैं, जैसे हम करंट फ्लो कराते हैं तो यहाँ से क्या होती है, लाइट आपकी एमिट होती है, और ये लाइट क्या करती है, इस फ्लैश लेज़र ट्यूब के अंदर आपकी क्या करती है, ये मूव करती है this side and this side. Some part of the light will be passed from this reflector, partial reflector, and other part will be deflected towards this side. This light will struck from the total reflector and reverse back towards the forward motion. ये क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, फ्लैश लैम्प में हम क्या करते हैं, लाइट को हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से कुछ लाइट क्या होती हैं, ऑप्टिकल लाइट क्या होती हैं, लेज़र ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें आपकी प्रोड्यूस होती हैं. फिर ये क्या करती हैं, ये आपस में ये मूव करती रहती हैं. वाइल मूविंग इन दिस देयर एनर्जी एंड वेवलेंथ increases, as well as it will produce a monochromatic and coherent light. इसमें लेज़र ट्यूब का मेन फंक्शन क्या होता है, इसका प्रोड्यूस करना होता है हमें मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट, CHOERENT, कोहेरेंट लाइट ये आपकी प्रोड्यूस करती है. जब ये मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट लाइट आपकी प्रोड्यूस होती है तो दिस वन विल बी पास थ्रू दी
फोकसिंग लेंस, अब ये आपके फोकसिंग लेंस में हम पास करते हैं, और जैसे ये फोकसिंग लेंस से पास होती है तो ये क्या करता है, फोकसिंग लेंस इसको एट ए सिंगल पॉइंट पे क्या करता है, इमर्ज आउट कर देता है, और वहाँ पे आपका क्या होता है, ड्यू टू दिस ऑप्टिकल एनर्जी एज वेल एज kinetic energy of the light, there is a heat produced at the workpiece, and this heat is utilized to machine the work surface, और यही हीट आपकी क्या होती है, यूटिलाइज होती है मशीन सरफेस को, सॉरी वर्कपीस के मशीन सरफेस को मशीन करने के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, आपका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। दिस फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज दिस लेजर बीम मशीनिंग एज वेल एज electron beam machining and plasma arc machining. These are the non-conventional machining and it is very important in from the examination point of view. सो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल साथ साथ में फिगर एज वेल एज एडवांटेज डिसएडवांटेजेस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम इसकी एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो इसमें क्या करता है, इन लेजर बीम मशीनिंग देयर इज नो फिजिकल टूल, यहाँ पे कोई फिजिकल टूल नहीं होता है। सो जैसे हमारा लेथ मशीन है तो लेथ में हमारा क्या होता है, एक रोटेटिंग पार्ट होता है, फिर कटिंग टूल होता है, तो उन दोनों के बीच में आपका क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है और कॉन्टैक्ट रहता है, जिसकी वजह से वियर एंड टियर आपके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो टाइम टू टाइम हमें क्या करने के लिए, ग्राइंडिंग करने के लिए। बट इन केस ऑफ लेजर बीम मशीनिंग देयर इज नो फिजिकल टूल, तो इसमें कांटेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वियरिंग आपकी क्या होती है, बहुत कम होती है। और दूसरी क्या होती है, लार्ज आस्पेक्ट रेशियो इन लेजर ड्रिलिंग कैन बी अचीव्ड अलोंग विद द एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी एंड डायमेंशन। जैसे हम ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग में आपकी जो थिकनेस वगैरह होती है वो लिमिटेड होती है, कि मतलब थिकर मेटल को आप ड्रिल से नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट लगेगा या बहुत ज़्यादा आपका उसमें वो लग जाएगा, क्या कहते हैं, टाइम लग जाएगा। बट विद द हेल्प ऑफ द लेजर बीम मशीनिंग हम क्या करते हैं, लार्ज डेप्थ तक के हम क्या पर होल को ड्रिल कर सकते हैं। माइक्रो होल, माइक्रो होल इसमें क्या होता है, प्रिसाइजली हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो होल को कर सकते हैं। जैसे आपने डाई देखा होगा, वायर ड्राइंग के लिए आपकी जो डाई बनती है तो उसमें बहुत स्मॉल 0.1 mm की अगर आपको वायर बनानी है तो उसके लिए डाई के लिए 0.1 mm का होल बनाना होता है, तो इसलिए माइक्रो होल कैन बी आपकी प्रोड्यूस थ्रू लेजर प्रोसेसिंग, थर्मल प्रोसेसिंग, बट हीट अफेक्टेड जोन इज इन नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। जो हीट अफेक्टेड जोन होता है आपका लेजर बीम में, वो आपका बहुत कम होता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है व्हाट इज हीट अफेक्टेड जोन। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि देयर इज ए लेस हीट अफेक्टेड जोन इन केस ऑफ द लेजर बीम मशीनिंग। नाउ लिमिटेशन की बात करते हैं, तो इसका जो कॉस्ट होता है, फर्स्ट इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई, मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपकी बहुत हाई होती है, क्योंकि जो आपका फ्लैश ट्यूब होता है वो आपका उसकी मेंटेनेंस करनी ज़रूरी होती है, अदरवाइज इट विल नॉट प्रोड्यूस ए मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट लाइट। थर्ड वन इज नॉट वेरी इफिशिएंट। इफिशिएंट की बात की हम करते हैं कि इसमें जो आपके रिफ्लेक्टिव मेटल होंगे, रिफ्लेक्टिव मेटल आपके क्या होंगे, वो आपके मशीन नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सपोज करिए अगर हमें ग्लास पे मशीनिंग करनी है और हम क्या करते हैं, उस पर लाइट को इम्पार्ट कराते हैं या उस पर इम्पिंज कराते हैं, तो इन दैट केसेस दे विल रिफ्लेक्ट दी लाइट फ्रॉम द ग्लास सरफेस। तो जितने रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स होते हैं, रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स कैन नॉट बी मशीन विद दी हेल्प ऑफ द लेजर, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, और रिफ्लेक्टिव मेटल की इमिसिविटी आपकी बहुत ज़्यादा होती है, सॉरी रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। सेकेंड वन इज जो आपका हीट अफेक्टेड जोन इन केस ऑफ CO2। जनरली क्या होता है, जो लेजर प्रोड्यूस होती है वो कई तरह से प्रोड्यूस करती है। एक तो सॉलिड, जो अभी हमने प्रीवियस पढ़ा था, वो सॉलिड लेजर प्रोड्यूस हो सकती है, CO2 यानी गैस लेजर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, एंड लिक्विड। तो ये तीन तरह से हम क्या करते हैं, लेजर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ द CO2 लेजर, CO2 लेजर प्रोड्यूस, इन दैट केस हीट अफेक्टेड जोन इज वाइडर। थर्मल प्रोसेस नॉट सूटेबल फॉर हीट सेंसिटिव। हीट सेंसिटिव जैसे मटेरियल एल्युमिनियम हो गया, आप ये हो गया, तो ये हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, इनमें आपकी क्या कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन, मतलब इसमें प्रॉपर आपका लेजर बीम से मशीनिंग हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। जनरली आपका लेजर बीम मशीनिंग एप्लीकेशन आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हो गया, एरो स्पेस हो गया, और आपका बहुत जगह हो गया, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हो गया, एरो स्पेस हो गया, ग्लास सॉरी क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, एरो स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़, इन सब में आपका क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन होता है। तो दीज आर दी
topic. These are the different aspect we have studied for the लेजर बीम मशीनिंग. पहले हमने क्या पढ़ा था? अरेंजमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद से वर्किंग प्रिंसिपल, देन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एट लास्टली एप्लीकेशन. इसके साथ हम बात करते हैं. तो अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा उसमें क्या होता है? प्लाज्मा आर्क मशीनिंग. अभी हमने वेल्डिंग में अपना प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग हमने आप लोगों को डिस्कस किया था. प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में जो आपका अरेंजमेंट है, सेम अरेंजमेंट आपका क्या होगा प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में. बट वेयर वी हैव यूज्ड वेल्डिंग, जहाँ पे हमने वेल्डिंग वर्ड यूज़ किया है, जस्ट आप उसको रिप्लेस कर देना है किससे? मशीनिंग से. जो भी आपका प्रिंसिपल प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का है, जो भी आपका अरेंजमेंट प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का है, सेम एज इट इज़ प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का है. बट वहाँ पे क्या होता था प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में? वहाँ पे हम क्या करते थे? वेल्डिंग करते थे. बट इन केस ऑफ द मशीनिंग, वहाँ पे क्या करेंगे? जो हीट एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हो रही थी 33,000 डिग्री सेल्सियस, दैट हीट एनर्जी इज़ यूटिलाइज टू वेपराइज एंड कट द मटेरियल. तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का जो प्रिंसिपल है वही सेम प्रिंसिपल आपका मशीनिंग का है. बट ध्यान रखना इन प्लाज्मा आर्क मशीनिंग वेयर वी यूज वेल्डिंग, जहाँ पे हमने वेल्डिंग यूज़ किया, एंड इन दैट केसेस वी हैव टू रिप्लेस वेल्डिंग विद द हेल्प ऑफ द मशीनिंग. मशीनिंग के साथ आपको रिप्लेस कर देना है. थैंक यू. ये एक और वीडियो हम इसके साथ हम भेजेंगे आपका इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग का, उसको आप लोग देख लेंगे. तो ये 3 टॉपिक हमने कवर किया. फर्स्ट वन लेजर बीम मशीनिंग, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, and last one electron beam machining. Thank you.